क्यों यहाँ से आवाज़ आ रही है? हेलो, चेक वन चेक वन। ओके, एक बार तू भी बोलियो वहाँ से। सीजियो से। सीजियो वालों ने, सीजियो वालों ने ना। ठीक है।
हमारे बीच आज के इस अवसर पर हमारे माननीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री साहब पधार चुके हैं। A very good morning to all of you. I request dignitaries to please as we all know that today is the International Day of Clean Air for Blue Skies, and also we know that this is a day that has started to be organized only of late. This is the third International Day of Clean Air for Blue Skies. When it was organized last year, then it was also shared that it should be organized as a day for promoting and meeting the objective of Swachh Pavan Gagan. So it is also a day which we are going to organize as Swachh Pavan and Neel Gagan Swachh Vayu Divas. We are very shortly going to be joined with our Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Is just joining in a while, and we would be starting the formal function in a short while. Before we start this function, I just would like to share that National Clean Air Program is currently being implemented in 131 cities across the country, and I take this opportunity to
share with all the audience present here in person as well as who have joined virtually that we have been joined with by all the states across the country, all the 36 states and union territories, the senior officials, the additional chief secretary and principal secretary environment as well as urban development. They are joining in for this today's function. We have been joined with all the 31 municipal commissioners across the country where this National Clean Air Program is being implemented. We have been joined with 7 line ministries whose work is in close linkage with the efforts for improving the air quality, and the senior officials, joint secretary and other officials have also joined in for today's function. We have been joined in with all the offices of the Central Pollution Control Board and all the institutes of reputes. They are 88 in number, and they are linked with each of the 131 cities across the country. They all have joined in today's function. Today's function is just a reiteration of the commitment on the part of all the stakeholders led by the Government of India that we are committed to improve the air quality, and we are committed to bring the air quality within the ambient air quality standards in the coming years in the shortest possible time, with the engagement with all the stakeholders right from at the national level to the state level and the city level. This indeed is a day when we are going to commit ourselves to move forward and attain the levels of clean air for a healthy and productive life of all of us, all our citizens. So, in a short while, we would be joined with with our Honorable Environment Minister, and we would be formally starting this function. Thank you. Okay. So, we have just got a message that because of some urgency, our Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change would be joining in a while. In the meantime, I would request Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change and other dignitaries to please come on the dais. I request honorable dignitaries on the dais to please formally inaugurate this function, today's function, by lamp lighting. Kindly, sir. वो आ जाते तो करते क्या ठीक आने पर करना उचित है 10-15 मिनट के बाद पहले अपना शुरुआत कराइए आते लैंप लाइट साथ में जी क्या फेलिसिटेशन वगैरह सब कुछ बाद, हाँ सब कुछ ठीक है।
और कार्यक्रम शुरू करें। Yes. So we'll go ahead with this program of lamp lighting and honoring our respected, esteemed guests as our Honorable Minister joins in a while. In the meantime, we would be starting with today's function, and formally I welcome all the persons who have joined here in person and virtually for today's event. I request Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, for his welcome remarks. Honorable Minister of State, Environment, Forest, Climate Change and Government of India. प्रोग्राम ही करना मैंने अभी रोका था लाइटिंग के लिए। मैंने रोक दिया था कि वो आते हैं तब करेंगे ये लाइटिंग का लैंप। नहीं तो करना चाहिए था। नहीं मैंने कहा आप आ जाएंगे। नहीं अब कर लें। अब बताइए। कर लीजिए। We have been joined with our Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Shri Bhupendra Yadav sir, and I request all the dignitaries on the dais for lamp lighting and to Thank you, sir. Thank you, madam. Now I request Shri Naresh Pal Gangwar sir to welcome Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Government of India. I request Shri Naresh Pal Gangwar sir to welcome Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Government of India. I request Shri Naresh Pal Gangwar sir to welcome Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of India. I request Naresh Pal Gangwar sir to welcome Shri M.M. Kutti, Chairman, CAQM. I request Naresh Pal Gangwar sir to welcome Chairman, CPCB. I request Shri N. Subramaniam to welcome Shri Naresh Pal Gangwar sir. Now I request Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, MOFCC, for his welcome remarks. Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, respected Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Government of India, respected Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, Honorable Ministers of Environment of the states and UTs who are connected virtually, Secretary MOFCC, respected Leena Nandan ji, Chairman CAQM MM Kutti ji, Chairman CPCB Tanmay Kumar ji, Chairman SPCBs, PCCs and other officials of SPCBs, PCCs who are connected virtually, Chairman and Mayor of urban local bodies, municipal officers of municipal corporations, district administrations connected virtually with this program, representatives of various ministries of the central government, representatives of state governments and UT governments, district magistrates, representatives from media,
fellow officers from ministry and other dignitaries, ladies and gentlemen. I welcome you all in today's event on occasion of International Day of Clean Air for Blue Skies, Swachh Pavan Neel Gagan. This was a slogan given by our Honorable MOS on the occasion of same day in the last year. The theme of third International Day of Clean Air for Blue Skies is the air we share. It primarily focuses on transboundary nature of air pollution, highlighting the need for collective action. The day is celebrated with an objective to promote solutions to improve air quality and spreading awareness amongst the citizens to combat problem of air pollution. The source of air pollution is spread beyond cities and countries and sometimes have transboundary origin. The Indo-Gangetic Plain airshed lies in area stretching from Indus River in Pakistan up to Bangladesh. Therefore, it becomes important to address the problem through collaborative discussions, efforts, and knowledge sharing. As we are aware that since 2019, keeping in view the importance of this issue, we have started a program called National Clean Air Program, which is targeting 131 cities across the country for mitigation of air pollution measures from localized sources and for the sectoral interventions by all the stakeholders. The program, though, is focusing on 131 cities, but the interventions planned under this program are designed in a manner that it affects and takes air pollution mitigation measures across the states and the national areas. And the strategy under NCAP primarily focuses on the convergence of actions and resources and schemes of central government, state government, and municipal corporations and other local bodies and the local government. Last year on this day, Honorable Minister had inaugurated Prana portal for monitoring and implementation of NCAP. In this portal, action plan of cities, states, and line ministries are available for monitoring of their implementation status. All NCAP cities are making efforts and intervention to improve their air quality. Cities have shared their best practices on Prana portal. Today we are releasing the brochures of best practices of some of the NCAP cities. These best practices may be adopted by other cities for improving their air quality. For encouraging participatory approach under this program, we have issued guidelines for capacity building and public outreach. For capacity building and public outreach at the city, state, and national level for improving air quality. The day aims to raise awareness and facilitate collective action to improve air quality. It is a global call to find new ways of doing things to reduce amount of air pollution we cause. On this occasion, I urge all the concerned stakeholders to make every possible effort to implement Honorable PM's vision of clean air for all. With these words, I once again welcome all the dignitaries and participants of this event. Thank you. Thank you, sir. Now I request Chairman CPCB Shri Tanmay Kumar for his address. आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परमादरणीय माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव साहब, मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारे आदरणीय राज्य मंत्री जी श्री अश्विनी चौबे साहब, हमारे विभाग के सचिव श्रीमती लीना नंदन जी, CAQM के चेयरपर्सन श्री कुट्टी साहब, हमारे कलीग श्री नरेश गंगवार, हमारे साथी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। सर, आज का इस कार्यक्रम में मुझे याद आता है जब हमने 1 सितंबर को ज्वाइन किया था गत वर्ष, और उसके साथ 1 साल हमारा भी इस विभाग में पूरा हुआ, और पिछले साल हम लोगों ने
यहाँ पर एक प्रकार का कार्यक्रम किया था जिसमें राज्य मंत्री जी ने स्वच्छ गगन और नील गगन के की एक परिभाषा दी थी और इस कार्यक्रम के लिए मैं ज़्यादा समय लेते हुए इतना ही बताना चाहूँगा सर कि CPCB को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी प्राणा पोर्टल के क्रियान्वित करने के लिए सर, और मैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जो आपने हमें निर्देश दिए थे सर उसमें हमने काफ़ी प्रगति की सर, हमने स्ट्रीमलाइन किया और आज हम इस स्तर पे पहुँच गए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे मॉनिटरिंग व्यवस्था है वो मॉनिटरिंग व्यवस्था ऑनलाइन है और पेपरलेस है सर। और हमने कल एक मीटिंग में अनाउंस भी किया था कि सभी जो हमारे साथी अधिकारीगण जुड़े हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री टू स्टेट गवर्नमेंट टू SPCB टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज सभी इस पोर्टल को यूज़ करें और इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है इस प्रोग्राम के मॉनिटरिंग के लिए। और हम इस माह के अंत तक जो फंड फ्लो इसको भी कंप्यूटराइज कर देंगे और कंटिन्यूस रैंकिंग की व्यवस्था इस पोर्टल के माध्यम से हो जाएगी सर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर पुनः मुझे मालूम है समय की पाबंदी है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथी अधिकारी श्री नरेश गंगवार जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I invite Chairman CAQM Shri MM Kutty sir for his address. Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister of State Shri Ashwini Kumar Dubey ji, Secretary Srimati Leena Nandan, colleagues on the dais, ladies and gentlemen. The International Day of Clean Air for Blue Skies is observed to strengthen awareness and cooperation for improving air quality and focuses on collective action. The importance of clean air for the well-being and health of people hardly need to be stated. For improving air quality, NCAP was launched. Important laws have been enacted by the central government, the latest being the Commission for Air Quality Management in NCR and Joining Areas Act. The Commission was set up in April 2021, that is last year, with the objective of better coordination, research, identification, and resolution of problems relating to air quality index. Commission has undertaken a number of activities and extensive consultations for a collective action with major stakeholders, including central government ministries, state government, GNCTD, PCBs, ULBs, entrepreneurs, innovators, technocrats, knowledge institutions, industry associations, and NGOs, covering all major sectors for improving air quality. The Commission has recently formulated a comprehensive policy to curb air pollution in the NCR by associating experts. Suggestions were invited from general public and experts. Suggestions received from civil societies, research bodies, industries, experts, academia, and individuals formed the basis of the new policy. The policy provides for sector-wise action plans with the timelines. The Commission has held regular meetings and has been sensitizing stakeholders and public about the measures to be taken for clean air. 73 statutory directions and advice have been issued by the Commission. In the industry sector, the main focus is to shift to cleaner fuels. Standard list of fuels have been formulated, biomass allowed with stricter emission norms, and coal banned in entire NCR except low sulfur coal in power plants. Large number of industry have been shifted to cleaner fuels. Commission is pursuing for augmenting public transport, converting public transport to cleaner fuels, and promoting e-mobility through mandating. For controlling dust from CND sites, more processing facilities are being set up. For better compliance of dust control norms, online monitoring system through web portals by video fencing and sensors is now functional in NCR. For controlling road dust, 60 management cells are functional to monitor use of mechanized sweeping machines, sprinkling of water,
disposal of dust scientifically, maintenance of roads, greening, etc. To address stubble burning, a framework has been developed. Salient as to the framework includes crop and variety diversification, in situ and ex situ crop management, use of biodecomposers, extensive IEC activities, and enforcement. GRAP has been comprehensively revised and is classified into 4 stages. Action shall be invoked 3 days in advance based on AQI forecast. Under each stage, separate citizen charters have been provided. Since the pollution sources in NCR are too many and hugely dispersed, tackling air pollution requires prolonged action and continuous support from citizens. Honorable Minister himself is monitoring and reviewing the progress of action that is being taken almost on a monthly basis. And in this context, events like this will give a major boost to co-opt stakeholders in our air pollution control efforts. I conclude with thanks to the Ministry and the Honorable Ministers for providing me the opportunity for presenting the efforts made by the Commission towards clean air. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Srimati Leena Nandan, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, for her special address. Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Honorable MOS for the Environment, Forest, Climate Change, and my colleagues on the dais, Chairperson CAQM, all those who are participating in this conference and all those who have joined us online. Today, as we talk about blue skies and clean air, I think we all have to take a step back and look at whether indeed we saw blue skies growing up and whether we are in a position of bequeathing these blue skies to the future generations. I think that is as much a wake-up call as anything else, that the time for action has come. In fact, it has been, the time for action has come a long while back, but perhaps as a nation and as a global community, we have not yet taken cognizance of the fact that indeed the very air we breathe is going to be the reason for many of the illnesses that we are facing. And it is going to be a very, very severe aspect of this whole climate change challenge. So today, as we talk about the best practices that many of the municipal authorities have put into place, we have to be equally cognizant of those cities where there have been no improvements and indeed there is a deterioration in the air quality standards. This is the time to act, to look at doing source apportionment studies so that you are able to pinpoint the reasons, and those reasons will be unique to every city, because we cannot have and we do not have a one-size-fits-all approach unless and until the cities know exactly what are the causes of the pollution and put into place the right interventions, project and policy level interventions. There will be no discernible change, and we will continue to have skies which are far from blue. We also need to look at the role that we as individuals and as members of society can play in terms of what our actions and our words are setting out to do. And here, I would again connect with the philosophy of lifestyle for environment, which our Honorable Prime Minister has laid before the global community in COP26. And as individuals, in our own private capacities, in our collective capacities as parts of institutions, of even residential communities, what is the change that we are trying to make? What is the behavioral change that we can adopt and advocate so that this philosophy of life for environment really becomes not just something we talk about, but it is in action and deed. It is visible, and the change that is brought about by us is visible in the form of cleaner air and bluer skies. So let us today resolve that this one day is not going to be the day, the only day that we talk about this problem. But in fact, going forward, it should be the day that we accord recognition to those who have made a change in whatever capacities they have been able to do. And
above everything else, the municipal bodies and the state urban development departments that are working with us, how we can mainstream these best practices, how we can avoid the pitfalls and the failures, how we can move to better systems, whether it is of mobility, whether it is of the way that we use the fuel and the way that the electrical appliances that we utilize, how we can make a change, how we can be the change that we wish to see in the world, as Gandhiji had said. So my good wishes to all those who are present here today, and let us resolve that we will actually do something to make a difference. And once we resolve, there is nothing to stop us as a nation from achieving that change. Thank you. Thank you, madam. Now I invite Shri Ashwini Kumar Chaubey, sir, Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Government of India, for his special address. आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस स्वच्छ पवन नील गगन के उपलक्ष्य में उपस्थित सम्मानित मंच और आप सभी, हमारे माननीय यशस्वी मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रीमती लीना नंदन सचिव, डॉक्टर MM कुट्टी जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र श्री तन्मय कुमार जी, अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और श्री नरेश पाल जी गंगवार, अपर सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग बड़े ही एक साल के इस अवधि को पार करके फिर आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, स्वच्छ पवन नील गगन, इस कार्यक्रम को मनोरम बनाने के लिए और इसके जन जागरण के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा आए हुए हैं। हमारे कई पता नहीं वर्चुअल रूप से कुछ शहरों के लोग जुड़े हुए भी हैं। जहाँ बताया गया कि 131 शहरों के लोग शायद जुड़े हुए हैं। स्वच्छ पवन नील गगन, इसने हमारे शैशव काल का यह जो 3 वर्ष पूरा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का जो ये स्लोगन्स दे करके अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाने का जो निश्चय किया है, अत्यंत ही सराहनीय कदम है। मुझे लग रहा है कि भारतीय संस्कृति में जो 3 अंक का बड़ा महत्व होता है। हम लोग हमेशा मनसा, वाचा और कर्मणा, इसकी बात करते हैं। हम लोग त्रिलोक की बात करते हैं। इतना ही नहीं, और अब समय आ गया है कि त्रिलोक, भूलोक, अर्थात इस पृथ्वी और आकाश लोक जो वायुमंडल है, एवं पाताल लोक, अर्थात जो हमारे जल, समुद्र एवं सागर, इसकी रक्षा का संकल्प मनसा, वाचा और कर्मणा से हमें लेने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को हमें भावी पीढ़ी की ओर ले जाना है। हम सब तो सब लोग जानते हैं, फिर भी उसको दोहराना भी आवश्यक है। किंतु विद्यालयों में यह कार्यक्रम एक अभियान के तौर पर चलना, एक जन जागरण अभियान,
मुझे लगता है कि हर एक विद्यालयों में अगर ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में विशेष करके जहाँ पॉल्यूशन का मामला ज़्यादा है, तो इस कार्यक्रम को एक अभियान के तौर पर विभाग को सभी राज्यों को निर्देशित उनको आग्रह करना चाहिए, जिससे हमें जिस पीढ़ी को बताना है वह हमारी भावी पीढ़ी इससे विज्ञ हो। भाई और बहनों, हम आज आयुर्वेद की एक सूक्ति है, जीवेत सर्दः सुखम जीवेत सर्दः शतम। उसकी कल्पना स्वच्छ वायु के अभाव में नहीं की जा सकती। प्रदूषित वायु से कई प्रकार की समस्याएं भी परंतु उत्पन्न होती है और शुद्ध वायु उसका उपचार है। हमने अभी वैश्विक महामारी के कालखंड में इसको भुगता है और मुझे हमारे देश में एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे। अगर एक को साथ दो तो सब सध जाएगा। और इसलिए वायु प्रदूषण की जो समस्या है उसका समाधान कर लेते हैं तो वायु जनित जितने भी अनेक समस्याएं, वायु जनित जितने भी रोग, उन सबका समाधान इसी एक से निकल जाएगा। चरक संहिता में भी लिखा है, वायुरायुर बल बलम वायुर्वायु वायुर्धूत वायुर्धाता शरीर नाम, है ना। वायु ही आयु है, वायु ही आयु है और वायु ही बल है। शरीर को धारण करने वाले हर मनुष्य को वह जो है वह भी वायु ही है, जिसको हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित या अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से निर्मित हमारा जो शरीर है ये बहुत ही मूल्यवान है और उसके लिए वायु अनिवार्य है। मुझे लग रहा है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय वायु दिवस मना रहे हैं। जब सचमुच में जब संकट सचमुच बड़ा हो, जब संकट सचमुच खड़ा हो, स्थिति भयंकर हो, स्थिति प्रलयंकर हो, तो हमें इन बातों का स्मरण भी आता है। विश्व में बहुऔद्योगिकीकरण के इस होड़ में एवं शहरीकरण के जो लगातार हमारे शहरीकरण की स्थिति बढ़ भी रही है और जो प्रदूषण की स्थिति चारों तरफ फैली हुई है, वह एक चिंताजनक स्थिति हम सब लोगों के लिए और चुनौती भी है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कार्यक्रम अपने सभी 193 देशों में आह्वान करके 7 सितंबर को स्वच्छ पवन नील गगन का यह मनाने का जो हम लोगों ने निश्चय किया है, केवल कार्यक्रम को करना ही नहीं बल्कि सचमुच में बचपन की वो बात हर पीढ़ियों को उस पीढ़ी को याद हो जाए। जब हम लोग बचपन में कभी चंदा मामा आजा 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 इसकी बात करते थे तो हर बच्चों के मानसिक कहा जाए कि उनको ये संस्कार में ये आ जाए कि चंदा मामा को हमको अगर बुलाना है तो मुझे स्वच्छ पवन और नील गगन की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके नेतृत्व में जो हमारी सरकार है वो वायु की गुणवत्ता और साथ साथ उसको सुधारने के लिए कई स्तरों पर काम भी कर रही है। और मुझे लग रहा है कि उन शहरों में तो विशेष ध्यान दिया ही जा रहा है जो निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा। और इस बात को विगत वर्ष में गुड़गांव में 2 दिनों का एक बड़ा ही सम्मेलन भी हुआ इसी विषय पर, चंडीगढ़ में हुआ। मैं गुड़गांव के सम्मेलन में भी गया था और उस कार्यक्रम में मुझे लग रहा है कि जनवरी 19 में जो हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे सभी शहरों में हवा की जो गुणवत्ता है उसको प्रदूषित करने वाले जो पार्टिकुलेट है उस मैटर को जो 20% से 30% हमें कम करना है।
इस बात की ओर हमें इंगित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मूल मंत्र के साथ दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हमें सबका विश्वास इसमें और सबका प्रयास चाहिए। और उनके अनुरूप हम अपने सभी जो हितधारक हैं, जो लाभुक है, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग, अनुसंधानकर्ता और नियामक अथॉरिटी, जितने भी संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकारों और उसके विभागों को भी, स्थानीय निकायों को भी हमने शामिल किया है। और इसका केंद्र बिंदु नीति निर्धारित हमें करना भी है, सही डेटाबेस बनाना, और उसके साथ साथ यातायात के साधनों में ग्रीन ऊर्जा का, ग्रीन एनर्जी के बारे में जो कहा गया है उसका उपयोग करना, ये सभी हमारे महत्व के विषय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि पहले की सरकार और हमारी सरकार में क्या अंतर है। पहले योजनाएं बनती थी समय से पूरा होने से पहले और बजट एवं टाइम बढ़ा दिया जाता था, लेकिन अब योजनाएं बनाई जाती हैं और लक्ष्य समय पर प्राप्त हो इसको सुनिश्चित किया जाता है। अंतर यही है, और इसलिए कुछ में तो समय से पहले ही लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। ये है अंतर, और इसलिए हमें उसी मानसिकता से देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमने तो एक लंबी छलांग भी लगाई है। भारत स्टेज 2 और भारत स्टेज 3 एवं स्टेज 4 के बाद सीधे हम स्टेज 6 पर पहुंच गए हैं। और इस तरह से फॉसिल फ्यूल में जो 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2030 तक तय किया गया था, इस दिशा में हमने तेज गति से काम भी किया है। और लक्ष्य को पूरा करने की सीमा 5 वर्ष कम करके 2025 जो हमारा है वो हमने कर दिया है। और इससे एक तरफ जहां स्वच्छ ईंधन की तरफ हमारा ध्यान है, हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो किसानों की आय बढ़े उसको भी हमने ध्यान में रखा है। दुगुनी आय हो उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है। मुझे लगता है कि वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जहां हर शहर के अनुरूप योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है, वहीं हमारी सरकार ने देश के 131 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता से निपटने की योजना भी हमने तैयार किया है। और मुझे लग रहा है कि 2014 में जो शुरू की गई स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ, और इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर सहायता दी जाती है। और इसी क्षेत्र में इंदौर में लगातार कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर की उपाधि भी वो हासिल करती रही है। और इसी शैली पर हमने देश के ऐसे 42 ऐसे शहरों का चयन किया है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। मुझे लग रहा है कि इसमें उन शहरों के स्थानीय निकाय को वायु की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता के सुधारने की दिशा में हमने जो कुछ अनुदान भी तय किया है, और वो मंत्रालय की ओर से अनुदान भी भेजी जा रही है। मुझे लग रहा है कि पिछले वर्ष आदरणीय हमारे मंत्री श्री भूपेंद्र जी ने प्राण पोर्टल को प्राण देने का काम किया था। मुझे लग रहा है कि उससे दिल्ली की जो वायु समाधान है और दिल्ली के इर्द गिर्द जो हमारे एनसीआर है, साथ साथ ये जो टावर हमने स्मार्ट का टावर जो हमने खड़ा किया, स्मार्ट टावर में भी उसका भी एक कील का हमने उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का एक प्रयास भी हमने किया है। और मुझे लग रहा है कि पोर्टल मंत्रालय और राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय तथा विभिन्न शहरों की कार्य योजना का कार्यान्वयन तो दिखाई पड़ रही है, साथ ही साथ विभिन्न शहरों में विभिन्न प्रकार की जो स्थिति के अनुरूप गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई जाए, इसका भी ज्ञान हम सबको हो रहा है। अशुद्ध वायु की समस्या
किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर ये हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। और जब विश्व के देश हम पर इसलिए नज़र रखते हैं कि किसी विषय पर हम क्या नीति अपना रहे हैं। पहले हम देखते थे कि विश्व की क्या नीति है और अब अंतर क्या हो गया है कि अब भारत की क्या नीति है। अब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि भारत क्या नीति बनाई। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते ही हमने अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके और दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हम बन गए। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। पूरा विश्व जिस तरह हमारे आर्थिक मॉडल को देख रहा है, उसी तरह हमारे इस पोर्टल को भी डाटा और कार्य योजना से दूसरे देश को उसकी जो वायु की गुणवत्ता उसको सुधारने के लिए इसके डाटा का उपयोग भी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। मुझे लग रहा है कि मंत्रालय से लेकर पंचायत स्तर तक को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और देश में 2.5 लाख से अधिक पंचायत है। मुझे लग रहा है कि उस वायु प्रदूषण को रोकने में भारत सरकार की जो वाहन स्क्रैपेज नीति है 2021 का, वो निश्चित रूप से मील का पत्थर सिद्ध होगी। और यह योजना तो एक है, परंतु इसके लाभ अनेक हैं और इससे प्रदूषण पर नियंत्रण, रोजगार, ऑटो इंडस्ट्रीज और उसकी सहयोगी उद्योगों में भरपूरी करने का काम, रोजगार के अवसर भी काफ़ी निकलेंगे इससे और जीडीपी में भी वृद्धि होगी। मुझे लग रहा है वायु प्रदूषण दूर करने के उपायों में वृक्षारोपण ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम वृक्षारोपण को बल देने का काम करें और जितने भी न केवल जो जंगल पहले के हैं, बल्कि हमें अनेक जो इस प्रकार के भूभाग, चाहे वो केंद्र और राज्यों में इस प्रकार के भूभाग खाली पड़े हुए हैं, उस पर वृक्षारोपण का एक अभियान कैसे अच्छी तरह चल सकता है, इस पर हमारे विभाग ने बल भी दिया है। इसको और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये हमने किया तो निश्चित रूप से जो प्रदूषण का संकट है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। मैं इस विषय को यहीं पर आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी वुड बी requesting Honorable Minister Environment, Forest and Climate Change for the release of brochures on guidelines on capacity building and public outreach, as well as guidelines on release of funds both under NCAP as well as air quality management. Sir, I would like to submit that the ministry has been taking efforts and engaging with all the municipal commissioners and their teams to adopt innovative ways of improving air quality in their jurisdiction. This time we have identified 8 such practices from 8 different cities that would help improve air quality in other cities as they have helped improve the air quality in those 8 cities. Sir, I would request for the release of such brochure of 8 best practices of 8 cities. These best practices pertain to sustainable transport, best practice to curb vehicular emissions in Pune and Bangalore, for sewage sludge management in Akola, for environmentally sound and sustainable solid waste management in Srinagar, Tuticorin and Varanasi. Lucknow's best practices for integrated control and command center, and Hyderabad best practices for enhancing the greenery that as an effective way of addressing air pollution and improving the air quality. So I hope, sir, these best practices
would be looked at and would be adopted and customized by different cities across the country, sir. Thank you very much, sir, for releasing the brochure, sir. So now I request Shri Bhupender Yadav, sir, Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, for his keynote address, sir. आज के इस क्लीन एयर प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री सम्माननीय अश्विनी चौबे जी, दिल्ली में निर्मित सेंटर CAQM के हमारे प्रमुख श्री कुट्टी जी, हमारी विभाग की सचिव सम्मान्य लीना नंदन जी, हमारे विभाग के दोनों एडिशनल सेक्रेटरी श्री तन्मय जी, श्री गंगवार जी, यहाँ उपस्थित विभाग के अधिकारीगण, सभी सम्मानित बंधुओं और मीडिया के मित्रों, विभाग के द्वारा पिछले वर्ष जब हमने क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था तो हमारी ये अपेक्षा थी कि इसको लेकर के नीचे के स्तर तक एक सक्रियता के साथ सब लोग मिलकर के काम करें, क्योंकि क्लीन एयर का विषय सरकार की प्राथमिकता का विषय है, लेकिन विषय की जटिलता ऐसी है कि इसमें सरकार के साथ हमारे स्वयंसेवी संगठन, हमारे स्थानीय स्वशासी संस्थान, विद्यालयों के और शैक्षिक संस्थानों के लोग, इस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले रिसर्चर, एकेडमिक पर्सन, उन सब के सहयोग के साथ हम एक अच्छा मूवमेंट खड़ा करें। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज हम एक नई अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते थे कि विभिन्न नगरों में स्वच्छ वायु के लिए इनोवेशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो। पिछले दिनों भी जब हम लोगों ने मुंबई में इसकी वर्कशॉप आयोजित करी थी, उसके बाद दक्षिण के राज्यों की वर्कशॉप हमने चेन्नई में आयोजित करी थी, NCR के राज्यों की वर्कशॉप हमने गुरुग्राम में आयोजित करी थी। और अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर कहूँ तो बहुत सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने नए नए तरीके से अपने शहरों में किस प्रकार से क्लीन एयर के लिए काम कर सकते हैं, वो विषय हमारे सामने रखे हैं। और इसलिए आज जो ये ब्राउशर हमने इशू किया है, बेंगलोर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मल्टीपल मेजर्स किए गए व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के। ऐसे लखनऊ के में उन्होंने अपना एक कमांड सेंटर डेवलप करा, उसका मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का विषय हुआ। श्रीनगर जैसे शहर में लोग एक साथ आए और एक तरीके से शहर में वायु प्रदूषण को सुधारने का एक अच्छा मूवमेंट बना। हैदराबाद में उन्होंने अर्बन ग्रीनिंग और वेस्ट मैनेजमेंट, उसको लेकर के हैदराबाद में काफ़ी अच्छे प्रयोग किए। उसके बाद वाराणसी में मल्टीपल सॉल्यूशन और मैनेज वेस्ट विद एफिशिएंसी, इसको लेकर के काफ़ी अच्छे प्रयोग हुए। अकोला में उन्होंने जो ड्रेन्स जिसमें लगातार शहर में रुकने के कारण, प्लास्टिक वगैरह के कारण जो शहर में पानी भरता था, उसको लेकर के अकोला में अच्छे काम किए। तुत्तीकुड़ी में जो नीचे हमारा तमिलनाडु में है, उन्होंने बायो माइनिंग, उसको क्लीनर वेस्ट पे लेकर अच्छा काम किया। पूना में उन्होंने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करी। और ये इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मिशन के रूप में अनेक लोगों को उन्होंने जो काम दिया,
उस पे बेस्ट प्रैक्टिसेस लोग लेकर के आए हैं। सामान्यतः हमें लगता है कि विजडम कहीं बाहर से आती है, कोई बड़े संस्थान से आती है। मेरा मानना है ऐसा नहीं है। विजडम हमारे लोगों के अंदर है और उन छोटे छोटे लोगों के भी अंदर है जो दूरस्थ कई शहर में बसे हुए हैं। हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए, आगे लाना चाहिए, ताकि वो हमारे सबके उदाहरण बने। और आज जो हम लोगों ने एक पॉजिटिव तरीके से ये 8 शहरों का ये जो ब्राउचर निकाला है, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है और उन शहर के सभी नागरिकों का हम अभिनंदन। हम चाहते हैं कि ये जो इनोवेशन है, जो नवाचार है, ये एक मूवमेंट बनना चाहिए और इस तरह का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब हम लोग लेकर के जाएंगे तो वो ये जो चिंता का विषय है, विशेष रूप से पॉलिसी मेकर्स के लिए भी चिंता का विषय है, जो एकेडमिक करते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज इंस्टीट्यूशन लगते हैं, उनके लिए भी है, और सामान्य जनता को तो परेशानी होती है। और इसलिए एनकैप के कार्यक्रम में फंडिंग की भी जो व्यवस्था करी है वो भी इसी के आधार पे करिए कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको पुरस्कृत भी किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से करें। और एनकैप में लगातार हम सारी रीजनल वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं और ये जो अगर 8 राज्यों के विषयों को देखोगे तो हमारी चुनौतियां क्या है। हमारी सबसे पहली चुनौती है किसी भी शहर में एक अच्छा डेटा कलेक्शन के लिए। अगर डेटा भी है तो उसका एनालिसिस और उसको अपने स्थानीय स्तर पे करना, कोई बहुत बाहर की कोई टेक्नोलॉजी और उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन शहरों का विस्तार हो रहा है, अर्बनाइजेशन होने के कारण जितने हमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जगह चाहिए, शहरीकरण का विस्तार होने के कारण व्हीकल पॉल्यूशन है, शहरीकरण का विस्तार होने के कारण इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, शहरीकरण का विस्तार होने के कारण डस्ट पॉल्यूशन है। तो जब हम सिटी की भी कल्पना करते हैं तो सिटी के साथ साथ ये इंटीग्रेटेड पार्ट ही हमारी सिटी का बनना चाहिए कि अगर इस सिटी में कल को 20 लाख लोग आएंगे तो कितने व्हीकल आएंगे, कितनी इंडस्ट्री आएगी, और उसको मेजर करते हुए उसकी ग्रीनिंग पे, उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सरकार के द्वारा जो स्मार्ट सिटी की योजना बनाई है उसका कॉन्सेप्ट ही इस प्रकार से बनाया गया है। लेकिन इनको स्वशासी संस्थाओं के माध्यम से नीचे के स्तर तक ले जाना, और इसलिए नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में जो हमारा लक्ष्य है वो एयर पोल्यूशन में जो रीजनल लेवल पे जैसे जैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग समस्याएं हैं। आप दिल्ली के एयर पोल्यूशन को ऐसे टैकल नहीं कर सकते जो आप चेन्नई का कर सकते, जो बेस्ट है, क्योंकि दिल्ली हमारा एक लैंडलॉक एरिया है। फिर जिस समय सबसे ज़्यादा हमारे पे दबाव होता है उस समय सबसे ज़्यादा जो वायु की गति है, मेरे को तो उतरते पर्यावरण मंत्री बनने के बाद शायद सितंबर अक्टूबर में यही रहता है कि तन्मय जी और कुट्टी साहब को फ़ोन करता हूँ आज हवा की स्पीड कितनी है, क्योंकि मीडिया भी बैठी रहती है आज कितना स्पीड पे जाएगी। तो ये ज्योग्राफिकल भी है, क्षेत्रीय स्थिति भी है, लेकिन इसके लिए हमें सामाजिक आर्थिक उपायों की चिंता भी करनी पड़ती है। लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, और इसलिए हर महीने जब हम CAQM की मीटिंग करते हैं तो यही देखते हैं कि अब और कितने लोग बायोफ्यूल पे गए और कितने लोग CNG पे गए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पहुँचा, डीजल्स का जनरेटर्स का प्रयोग कितना कम हो रहा है। एनफोर्समेंट भी हम लोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक को अपने साथ अवेयरनेस के साथ भी जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए हर क्षेत्र के लगभग हम सभी रीजनल क्षेत्रों में जो वर्कशॉप करते हैं उनके क्षेत्र के जो लक्षण हैं और जो पॉलिसी भी हमको लेनी है, और विशेष रूप से जो ये 8 शहरों का चयन किया है, हमें कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसी के ऊपर भी चलना है, क्योंकि जितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा उतना आम आदमी की अप्रोच में होगा। हम केवल बड़े उसके नियमों के आधार पर नहीं लगा सकते, और इसलिए फ्यूचर में नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में जो नए हमारे बच्चों के भी जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट कैसे किया जाए ताकि वेस्ट मैनेजमेंट को हम ठीक ढंग से कर सकें।
और मेरा मानना है इसमें हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पोर्टल निकाल के एक अवेयरनेस का काम किया है, लेकिन वो लोग भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एक अच्छी भूमिका में काम कर रहे हैं। और इसलिए एक और जो बड़ा विषय है जिसको लेकर के सरकार काम कर रही है, हम अपनी जिम्मेदारी से तो काम कर ही रहे हैं, एनफोर्समेंट के लिए भी लोगों को साथ लेते हुए हम क्लीन एयर मिशन में काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ पहली बार जो पिछले वर्ष सरकार ने एक बिल पास किया दिल्ली के लिए, ये अपने आप में एक नया लेजिस्लेटिव परिवर्तन था जिसमें हमने ट्रांस बाउंड्री मैंडेट दिया, एयर शेड की पहचान करी। क्योंकि एयर जो है कोई दिल्ली का एयर कोई दिल्ली के कारण नहीं है या बाकी के एनसीआर रीजन में भी इधर के कारण नहीं है, एयर शेड को हमको पहचानना पड़ेगा और उसको हमने एक तरीके से लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत मान्यता भी दी। और उसमें दिल्ली का ये जो एक्ट है केंद्र सरकार का, ये अपने आप में उदाहरण है कि हमने उस समस्या से का समाधान करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया। और मुझे ये खुशी है कि 1 साल का अगर ये प्रयोग देखेंगे तो आज जो कभी एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट का जो प्लान बनता था और अभी पिछले महीने के ही रिव्यू में जो प्लान हमने देखा और जो रिलीज किया, मतलब ये एक बेस्ट प्लान के रूप में उन्होंने अपने आप को विकसित किया है। और ये एक जिसमें फार्मर्स के लोग भी हैं, इंडस्ट्री के लोग भी हैं, ट्रेड्स के लोग भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, उनका अपना एक डेटा एनालिसिस है, अपना रिसर्च है और अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे वो काम कर रहे हैं। और इसलिए सारे विषयों को लेकर के, चाहे वो डेटा डिस्क्लोजर हो, ऑडिटिंग हो, मॉनिटरिंग हो, इवैल्यूएशन हो, सिटीजन पार्टिसिपेशन हो और लीगल रिपोर्ट और स्टेटस को पूरा करने का काम हो, ये लगातार CAQM कर रहे हैं और हम अन्य जगहों पे भी कर रहे हैं। अभी हमारी सचिव महोदया कह रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाइफ मिशन को लेकर के देश ही नहीं दुनिया भर से हम लोग एक मिशन के रूप में विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। लाइफ मिशन का अर्थ ही है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में COP26 को संबोधित किया था तो उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जिस प्रकार से आज जो हम लोग जीवन पद्धति को अपना रहे हैं उसमें चीज़ों का माइंडफुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पिछले दिनों नैरोबी में जब यूनिया के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला तो मुझे बहुत अच्छा एक यूनेप के अधिकारी ने कहा कि लाइफ का बहुत अच्छा अर्थ है कि धरती से जो हम कुछ लेते हैं बाद में धरती को कचरे के रूप में हम वापस देते हैं। नेचर हमको सब चीज़ें प्रदान करती है, लेकिन हम जो नेचर को वापस करते हैं वो हम किस रूप में करते हैं। और इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एयर पोल्यूशन के लिए हमारी मंत्रालय बहुत सक्रिय है। हर सितंबर के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल क्लीन सी डे मनाया जाता है। समुद्र को साफ करने का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पिछले 75 दिनों से समुद्रों के किनारे बीचेस को सफाई के लिए कार्य कर रही है। हमारे मंत्रालय के द्वारा भी पिछले 26 तारीख को पुडुचेरी में, अब 10 तारीख को पुरी में, उसके बाद मुंबई में, इस पूरे कार्यक्रम में मंत्रालय के द्वारा 17 तारीख को विशेष रूप से, चूंकि इंटरनेशनल क्लीन सी डे है, सभी जगहों पे नोडल के साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ काम किया जा रहा है। हमारे पूरे इस इकोसिस्टम में वेटलैंड्स की बड़ी भूमिका है और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे मंत्रालय ने जो तय किया कि हम मिनिमम 75 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिलवाएंगे, मंत्रालय ने 15 अगस्त से पहले उस लक्ष्य को भी प्राप्त किया। और उसके साथ ही साथ लोग हमसे ये प्रश्न पूछते थे कि आप टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो इसका क्या लाभ है। अब जब हमारे मंत्रालय ने एक पूरा स्टडी का बुकलेट तैयार किया जिसमें हमने कहा कि ये 52 टाइगर रिजर्व केवल टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि
जो नदियाँ हिमालय से आती हैं वो तो ग्लेशियर से आती हैं, लेकिन जो नदियाँ पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, कावेरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, गोदावरी निकलती है, वो हमारे इस फॉरेस्ट जो डेंस फॉरेस्ट है इन्हीं के में से वो सोर्सेज उनके निकलते हैं। और इसलिए जब मंत्रालय ने एटलस प्रकाशित किया तो हमारे 52 टाइगर रिजर्व में 250 से ज़्यादा वो वाटर रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश को हरा भरा रखने का काम करते हैं। और इसीलिए हमारे मंत्रालय के ICFRE ने एक 13 प्रमुख नदियाँ और उनकी ट्रिब्यूटरी को लेकर के एक बड़ा अच्छा फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के द्वारा कैसे उसको सुधार सकते हैं उसको लेकर के भी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया और पढ़ने लायक डॉक्यूमेंट है देश में। लेकिन इसके साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के बाद हमारे CPCB के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आज के दिन हम फिर आपसे सबसे ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन और जो पॉलिसी हमने नोटिफिकेशन निकाला उसमें काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन और उसमें जनता का सहभाग और सहयोग मिलना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर के मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी कार्य और अब अन्य प्रोजेक्ट भी मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। इन सबको करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता को आगे बढ़ाने का है। और अभी जब प्रोजेक्ट चीता का विषय है तो उसको लेकर के भी हमारे जो नौजवान हैं 10वीं 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अपने नेचर के कंजर्वेशन को लेकर, अपने नेचर के साथ जीने के विषयों को लेकर हमारे नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा, एनविस के द्वारा एक लगातार वर्चुअल टॉक का भी आयोजन किया जा रहा है, उसका भी कार्यक्रम बना है ताकि केवल ये विषय यहाँ तक ना रहे। पिछली बार जब मैं मंत्रालय में इस मंच पे आया था तो मैंने कहा था कि जितने भी हमारे ये जो मंत्रालय के द्वारा प्रकृति से जुड़े हुए डे होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे होने चाहिए। और इसलिए जब इस बार टाइगर डे आया तो पूरा मंत्रालय ने तड़ोबा महाराष्ट्र में कार्यक्रम किया। इस बार जब एलिफेंट डे आया तो मंत्रालय ने केरल में पेरियार पे जाकर के इस कार्यक्रम को किया। NTCA की मीटिंग हुई तो पहली बार अरुणाचल प्रदेश में पाके के टाइगर रिजर्व में हुई। उसी के साथ साथ जब वेटलैंड का विषय आया तो हरियाणा में सुल्तानपुर में कार्यक्रम हुआ। और स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इस प्राकृतिक धरोहर के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से सक्रिय। और हमारा मानना है कि पर्यावरण और विकास ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। पूर्ण विकसित जब कहा जाएगा जब पर्यावरणीय संतुलन हो, और पर्यावरण सुरक्षित भी तब होगा जब विकसित हम हो सकेंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड और नॉलेज को अपना करके हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दे सकेंगे, तभी हम इन सारे लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। और इसलिए न केवल 75 वेटलैंड, हमारे 52 टाइगर रिजर्व, अभी तो देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट के चलते हुए भी 30 साल हो गए और हमारा अभी एक और एलिफेंट रिजर्व है। अब हमारे पास 32 एलिफेंट रिजर्व भी हो गए हैं। और इसके साथ ही साथ देश की इन पर्यावरणीय विषयों को चिंता करते हुए जो क्लीन एयर का विषय है इसको हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये जो 132 शहर हमने चयनित किए हैं इन सभी शहरों में कोई अच्छा ब्राउशर निकले, हम सबको आह्वान करेंगे। बाकी मेरा तो ये मानना है कि ब्राउशर इसका एक बुकलेट हम सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ के मेयर को, कमिश्नर्स को भेजेंगे ताकि हर वर्ष क्लीन एयर पे ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को ये लगे कि हमारा ब्राउशर भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा प्रकाशित हो, वही रैंकिंग हो जाएगी और वही देश की वायु को स्वच्छ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ, हमारे बीच माननीय
पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय की मंत्री श्री भूपेंद्र यादव सर उपस्थित हुए, and it has really encouraged us and has been, as always has motivated all of us to work towards improving the air quality with all partnership, collaboration, and cooperation across the country. Sir, I'm on behalf of Minister of Environment, Forest and Climate Change, I'm really thankful for gracing this occasion. I also am thankful to Sri Ashwini Kumar Chaubey sir for his kind presence during this event. I'm thankful for all the guidance provided by Srimati Leena Nandan, Secretary, Minister of Environment, Forest and Climate Change, for organizing of this program. I'm thankful to Sri M.M. Kutty sir and Sri Tanmay sir for gracing the occasion. And I'm thankful to all the participants who are here in this room participating in person and all who have joined virtually for being there with us and taking the message to work towards improving the air quality in right earnest over the next 1 year. And as our Honorable Minister Sir has said that we'll come back again and would like to have the more process and more best practices coming from all the cities across the country, all the NCAP cities. I'm thankful to all our media friends from print and electronic media who are here all through this event. And I'm thankful to one and all the ladies and gentlemen who have joined this event. I thank Sri Naresh Pal Gangwar sir for the monitoring, for all the guidance in the organizing of this event, and to all my team members from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as well as CPCB. All the divisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, GC, GA, and everyone, I extend my personal thank you on behalf of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Thank you very much for joining in for this event. And now I request our media friends and all the dignitaries to join in for the lunch on 4th floor dining area in this building itself. 4th floor, Vayuvik. This. Thank you for lunch.